Good evening to all of you. Welcome back to today's class. In this class, we are going to do questions from 11 to 16 of exercise 12.3, which we have done in the morning also. So I'm starting with 11th question, right? Your 11th question is, on a square handkerchief, 9 circular designs, each of radius 7 centimeter are made. Find the area of the remaining portion of the handkerchief. They are saying this is a handkerchief and there are 9 circular designs and the radius of each circle is 7 centimeter. This circle is of radius 7 centimeter. Other than these 9 circles, the remaining part of the handkerchief is shaded and we have to find out the area of the shaded region. How will we find out the area of shaded region? To find out the area of shaded region, we will have to subtract the unshaded region from the total region, right? So to find out the area of shaded region, we will have to subtract the area of 9 circles. 9 circles will have to be subtracted from total area, and here total area is the square handkerchief. So area of square minus area of 9 circles, right? Now let me apply the formula. For area of square, we have the formula side square minus area of 9 circles. So 9 multiply area of circle is pi r square, right? Here the radius we have pi ki value 22/7 and the radius of each circle is 7. So 7 square means 7 multiply 7. Now we are on the side of the square. You are not given the side of the square, but if this is 7 given to you, you have to find out the side of this square yourself. What will be the side? If this is 7, तो इसका diameter आपका कितना हो जाएगा? 14. इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक 14. ये भी आपका 14 and this one is also 14. So the side of the square is 14 plus 14 plus 14, that is 42. So you will have this to be 42 square. ठीक है, और इसके बाद आप इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे. You will get 42 square is equal to 1764. इस 7 से आपने ये 7 कैंसिल किया. 9 multiply 2 multiply 22 multiply 7 जब आप करेंगे, then you are going to get the value to be 1386. और इसको जब आप subtract करेंगे, then you are going to get the answer. माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? It will come out to be 378 centimeter square. So the area of the shaded part is 378 centimeter square. ठीक है, इसमें आपने शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना था. उसके लिए हमने पूरे स्क्वायर में से ये 9 सर्कल्स माइनस किए हैं. ठीक है, पूरे स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, उसमें से 9 सर्कल्स मींस पाई आर स्क्वायर. सो यू हैव सब्ट्रैक्टेड 9 पाई आर स्क्वायर फ्रॉम साइड स्क्वायर. ठीक है, उसके बाद आपने इसमें वैल्यूज पुट की हैं, देन यू गॉट द आंसर टू बी 378 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन देख लेते हैं. फिर से आपको एक फिगर गिवन है जिसमें आपका कुछ पार्ट शेडेड है, कुछ अनशेडेड है. यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट. ठीक है, आपके पास एक क्वाड्रेंट गिवन है OACB. OACB. Here we have point C and this is B. यहां से इन्होंने एक लाइन ड्रॉ की है और ये ट्रायंगल कंप्लीट हो गया. ये 90 डिग्री है क्योंकि क्वाड्रेंट है. सो वी हैव दिस ट्रायंगल. दिस पॉइंट वी हैव टेकन एज D एंड द शेडेड पार्ट इज दिस. ठीक है, इसके साथ साथ आपको गिवन है OACB is a quadrant of a circle with center O and radius 3.5 centimeter. If OD is equal to 2 centimeter, ये आपके पास 3.5 सेंटीमीटर है. ये पूरा भी 3.5 है because this is the radius of the quadrant. And OD, this is 2 centimeter. ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB.
and then we have to find out the area of the shaded region. Area of quadrant OACB, you all very well know the formula for area of quadrant is या तो 90/360 pi r square या फिर 1/4 pi r square. ठीक है, so we are to apply 1/4 pi r square. 1/4 is the value of pi given to us? No, it is not given, so we will have to put the value 22/7 and the radius is 3.5 square. So आप इसको सॉल्व करेंगे, इससे आपने ये कैंसिल किया, यू आर गेटिंग 11/2 7 into 3.5 को आपने लिख लिया 35/10. 35/10 एक 7 से आपका ये कैंसिल हो गया, 5 से आपने 10 कैंसिल कर दिया. Here also it is cancelled और आपके पास जो आंसर आ जाएगा that will be 77/2 to the 4 to the 8. So you will have 77/8 centimeter square. ये तो हुआ आपका फर्स्ट पार्ट जिसमें आपने फाइंड आउट करना था एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB और वो आपने फाइंड आउट कर लिया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब मैं इसे इरेज करके इसके सेकेंड पार्ट पे आ रही हूँ. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. ठीक है, इसे इरेज करते हैं. हमें फर्स्ट पार्ट से इतना पता चल गया कि क्वाड्रेंट का एरिया तो 77/8 है और शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे में से आपको ये ट्राइंगल माइनस करना पड़ेगा. इस पूरे का एरिया तो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके. ठीक है, नाउ वी विल फाइंड आउट दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा लो. सेकेंड पार्ट नाउ, एरिया ऑफ ट्राइंगल OBD. आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, आपके पास बेस भी है, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई. सो यू विल गेट 1/2 इंटू 3.5 इंटू 2. 2 से आपका 2 कैंसल. यू हैव द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू बी 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. बट वी हैड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. हमें तो शेडेड का निकालना था. ठीक है, तो शेडेड का निकालने के लिए माइनस कर दो, क्वाड्रेंट में से ट्राइंगल माइनस. ठीक है, और क्वाड्रेंट का एरिया आप पहले ही फाइंड आउट कर चुके हो 77/8. इसमें से आपने क्या माइनस करना है, 3.5. और 3.5 को भी आप 35/10 लिख लो क्योंकि ये आपका फ्रैक्शन में है. So 35/10, 5 7s are 5 2s are. Then you can take the LCM. 77 minus 28 और माइनस करो 9 6 minus 2 4/8 centimeter square. So you will get the area of the shaded region to be 49/8 centimeter square. ठीक है, क्वेश्चन में आपके पास ये फिगर गिवन थी, आपने फाइंड आउट करना था एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. उसके लिए हमने अपना फॉर्मूला क्वाड्रेंट वाला लगाया 1/4 पाई r स्क्वायर. r की आपके पास वैल्यू गिवन थी. ठीक है, उसके बाद आपने फाइंड आउट करना था एरिया ऑफ शेडेड रीजन. शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमने टोटल का एरिया उसमें से माइनस किया है ट्राइंगल का एरिया. टोटल का एरिया आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो. देन वी आर फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. जब आपने ये फाइंड आउट किया, ये आपका 3.5 आया. इन दोनों वैल्यूज को माइनस करके आपके पास आया है एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन. ठीक है, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 12. एंड नाउ वी आर कमिंग ऑन 13th क्वेश्चन. In your 13th question, you are given a quadrant and in that quadrant we are given a square. एक आपके पास ये quadrant है, इस quadrant में हमें एक square given है. ठीक है, और हम we have to find out the area of the shaded region other than square. The area is shaded और आपने इस shaded part का area find out करना है. कैसे निकालेंगे, how will we find out the area of the shaded region? शेडेड का फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेंट में से क्या माइनस करना पड़ेगा, स्क्वायर. ठीक है,
पूरे एरिया में से जो शेडेड नहीं है, अगर आप उसे माइनस कर देते हैं तो आपके पास वो एरिया आ जाता है जो शेडेड है। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन यू आर गिवन OA is 20 and we have to find out the area of shaded OA. This is 20 given. ठीक है, तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड अगर मुझे फाइंड आउट करना है, I will have to subtract the area of square from area of quadrant. ठीक है, quadrant का area you all very well know 1/4 pi r square minus pi. Now they have given in the question 3.14. ठीक है, area of square का area आपके पास होता है side square and what is the side of the square 20. तो ये हो गया आपका 20 स्क्वायर और इधर देख लेते हैं 1/4 22/7 एंड देन वी नीड रेडियस, बट हमें रेडियस गिवन नहीं है। रेडियस का मतलब है O से लेकर P तक। ठीक है, O से लेकर Q तक, वो तो हमें गिवन ही नहीं है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम हो गया कि हम रेडियस फाइंड आउट कैसे करें। रेडियस फाइंड आउट करने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, आपने O को B से ज्वाइन कर दिया। कैन आई से कि ये OB भी रेडियस है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर कंपास रखी है, इतनी खोली है, तो आप ऐसे ही तो लगा रहे हो अपनी आर्क को, तो B पॉइंट से भी पास हो रही है। दैट मींस फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट B वी हैव रेडियस। ठीक है, तो अगर हम किसी तरह से OB की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, वी विल पुट दैट वैल्यू इन R एट द प्लेस ऑफ R। अब बात आती है कि हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। दे आर सेइंग दिस इज अ स्क्वायर। ठीक है, अगर ये स्क्वायर है, ये 20 है, तो ये साइड भी आपकी कितनी हो गई 20, ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। कैन वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम टू दिस ट्राइंगल नाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज है, इसकी वैल्यू मिसिंग है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसलिए मैंने ये स्पेस छोड़ा था कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। बाय Pythagoras theorem, OB is equal to under the root OA square plus AB square, which is equal to under the root 20 square plus 20 square, that is equal to under the root 400 plus 400, which is equal to 800. और 800 को आप सिंप्लीफाई करेंगे, then you will get 2 2 2 10 10। जिसके पेयर्स बन जाते हैं आप उसे बाहर निकाल लेते हैं। सो एक 2 का पेयर बना और एक 10 का, तो 2 और 10 दोनों आपके क्या हो जाएंगे, दे विल कम आउट। ठीक है, 2 और 10 मिलके क्या बनेगा 20, और रूट के अंदर आपके पास क्या रहेगा सिर्फ 2। सो द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 20√2। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं अब हम। दिस विल बी 20√2 स्क्वायर माइनस, और साइड आपके पास थी 20 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ से ये 2 तो कैंसिल हो रहा है 22 के साथ 4, तो आपके पास रह गया 11/14 इंटू 20 का स्क्वायर 400√2 का स्क्वायर हो गया 2। ठीक है, माइनस 20 का स्क्वायर 400, राइट। इसको आप कैंसिल कर लीजिए, नीचे आपका 7 14 और 2 से कैंसिल हो जाएगा, और फिर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। थोड़ा सा इसको 7 से कैंसिल तो नहीं हो रहा ना ये, अच्छा ओके, यहाँ पर हमने एक गलती कर दी। हमें जो पाई की वैल्यू पुट करनी थी वो हमने पुट करनी थी 3.14। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1/4 3.14 इंटू 20√2 स्क्वायर, तो ये आपका 1/4 3.14 इंटू 20 का स्क्वायर 400√2 का स्क्वायर 2। ठीक है, इसको अब आप कैंसिल कर लो, 400 से ये आपका 4 सीधा सीधा 100 आ जाएगा, और यहाँ से आपकी जो वैल्यू आ जाएगी 100 इंटू 3.14, डेसिमल हट जाएगा, ये हो जाएगा 314, और 314 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, और आपके पास आ जाएगा 628 में से आपने 400 माइनस करना है। ठीक है,
628 में से 400 माइनस, और जब ये माइनस होगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो वी विल से दैट द एरिया ऑफ द शेडेड विल कम आउट टू बी 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, so this was your question number 13. Now we are coming on 14th one. 14th question आपका easy है, वो आपने पहले भी कर लिया है, उसी का ही थोड़ा सा पार्ट है। Now you are given this figure. पहले आपको पूरा सर्कल गिवन होता था, अब आपको सर्कल नहीं है, अब आपको उसका थोड़ा सा पार्ट गिवन है। आपने मॉर्निंग में ये क्वेश्चन किया था जिसमें आपको 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स गिवन थे, उसमें एंगल आपका गिवन था 30 गिवन था शायद, यहाँ पर भी आपको एंगल 30 ही गिवन है, एंड द रेडियाई आर गिवन 7 and 21. दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस इज 7 सेंटीमीटर, एंड दिस रेडियस इज 21 सेंटीमीटर. वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. फिर से आपके पास जो ये बन रहा है बड़े वाला सेक्टर, उसमें से छोटे वाला सेक्टर माइनस करेंगे, यू विल गेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिगर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर. ठीक है, ये आप क्वेश्चन अब कर सकते हैं वैसे तो खुद. पॉज द वीडियो एंड डू द क्वेश्चन योरसेल्फ. थीटा अपॉन 360 पाई, थीटा की वैल्यू पुट करते हुए चलते हैं, 30 अपॉन 360 पाई 21 स्क्वायर माइनस 30 अपॉन 360 पाई 7 स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका, कैंसिल किया आपने, 360 था इधर. ठीक है, तो 1/12 पाई, पाई भी आपने 22/7, ये दोनों चीजें आपने कॉमन ले ली, और अंदर जो आपके पास इसमें से इतना कॉमन हो गया तो यहाँ से आपके पास 21 स्क्वायर बच गया, माइनस इधर से रह गया 7 स्क्वायर. ठीक है, नाउ यू हैव, इससे भी आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 6 2 11, यू विल गेट 11 अपॉन 42 इनटू 21 का स्क्वायर आपका हो गया 441 minus 49, and now you are getting 11 upon 42 multiply, minus कर दीजिए, 392. ठीक है, और ये 392 आपका 7 से कैंसिल होना चाहिए. हाँ जी, 7 से ये दोनों आपके नंबर्स कैंसिल हो जाएंगे, 56, और यहाँ पे आ गया 6, फिर से आपका 2 से भी कैंसिल हो गया. ठीक है, 28 को 11 से मल्टीप्लाई करें और नीचे आपका 3 रह जाएगा, सो योर आंसर विल बी 308 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस विल बी द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट. ठीक है, ये आप ऑलरेडी कर भी चुके हो, क्वेश्चन फिर से कर दिया है. नाउ वी आर कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 15. ये आपका 14th था. After 16, I will stop doing the questions. 15th question is, you are given a triangle. This is the triangle given. Right triangle है. ठीक है, इसको हमने एक quadrant बनाया. They are saying right triangle नहीं है, हम कह रहे हैं कि हमने एक quadrant बनाया. ठीक है, ये quadrant बनाया जिसका एंगल 90 डिग्री हो गया, और इसकी आपको शायद रेडियस भी गिवन होगी. Yes, the radius is 14 सेंटीमीटर. ये आपके पास 14 है, तो ये भी 14 हो गई, एंड द नेम्स ऑफ द पॉइंट्स आर ए, बी एंड सी. ठीक है, फिर आपने क्या किया, बी को सी से ज्वाइन कर दिया, राइट. बीसी को डायमीटर बनाकर आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, ये आपका सेमी सर्कल बन गया. ठीक है, अब आपने जो ये पार्ट आया था ना, इसको आपने कर दिया शेड. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन. ठीक है, इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास देखो फिगर सिंपल सी क्या है, ये वाला सारा पार्ट मेरे पास एक्स्ट्रा है. ठीक है, कुल मिला के सिर्फ फिगर इतनी सी है कि मुझे इस सेमी सर्कल में से अगर ये सेगमेंट में माइनस कर दूं
तो मेरे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड के लिए मुझे चाहिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ, ये सेगमेंट ही तो है, ठीक है, क्योंकि ये कॉर्ड से बना था ना। सेगमेंट क्या होता है, ये जब आपने कॉर्ड लिया है तो ये बीच वाला एरिया जो आता है ये सेगमेंट होता है। तो हमारा भी तो ये क्वाड्रेंट ही तो था, और क्वाड्रेंट में ये पूरा ये सर्कल था ना। अगर हम इसको ऐसे कंप्लीट करते तो ये सर्कल होता, और सर्कल में ये कॉर्ड, तो ये है हमारा सेगमेंट। ठीक है, हमने करना है सेगमेंट माइनस सेमी सर्कल में से, तो मेरे पास आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, अब मेरा काम रह गया सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना। यहाँ पर ये वैल्यू थी 14, ये भी थी 14, और ये है आपका पॉइंट सी। ठीक है, सेमी सर्कल का एरिया होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। आर के लिए मुझे इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी मैं इस आर को निकाल सकती हूँ। ठीक है, दैट मीन्स सबसे पहले मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और इसकी वैल्यू मेरे पास कहाँ से आएगी, ये वैल्यू आएगी पाइथागोरस थ्योरम से इन दिस ट्रायंगल। ठीक है, सो सबसे पहले हम कर रहे हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम in triangle ABC, you will get BC hypotenuse is equal to under the root perpendicular square means AB square plus base square means AC square, that is equal to 14 square plus 14 square। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 14√2। ठीक है, ये तो आई है मेरे पास BC की वैल्यू, बट मुझे चाहिए रेडियस इसका हाफ। हाफ कैसे करोगे, 14√2 का हाफ और इसका स्क्वायर। तो यहां से तो एक वैल्यू तो आ गई एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो ऐसे आएगा। अब आते हैं सेगमेंट पे। सेगमेंट का एरिया कैसे निकालें, सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्वाड्रेंट में से ट्राइंगल को माइनस कर दो। ठीक है, क्वाड्रेंट में से ट्राइंगल को माइनस कर दो। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब क्वाड्रेंट का एरिया तो आपको पता ही है 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस ट्राइंगल, आपका राइट ट्राइंगल बन रहा है, सो यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, जब आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे 1/4 पाई क्या लेना है 22/7 या 3.14, यू हैव टू टेक पाई 22/7 इंटू रेडियस आपकी है 14 इंटू 14 क्योंकि 14 स्क्वायर है, माइनस 1/2 इंटू बेस भी 14 और हाइट भी 14। ठीक है, तो अब यहां से जो आप टोटल वैल्यू इसकी कैलकुलेट करके निकालोगे एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया आपके पास आ जाएगा। ये जब आप इसको सारा कैलकुलेट कर लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सारा कैलकुलेट जब आप कर लोगे तो इसकी वैल्यू आपके पास 56 आ जाएगी। राइट, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गई। दैट मीन्स हमने सेमी सर्कल में से ये 56 माइनस करना है। राइट, अब इसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं 1/2 22/7 इंटू 14 इंटू 14 स्क्वायर कर रहे हैं, √2 का स्क्वायर हो गया 2/2 का स्क्वायर, या फिर आप सीधा यहाँ से इसको कैंसिल कर दो 7√2 और यहाँ पे 7√2 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो गया 49, √2 का स्क्वायर हो गया 2। ठीक है, √2 का स्क्वायर जब आप करोगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल और 7 का स्क्वायर आपका 49 आ जाएगा। अब आप इसको कैंसिल कर लो, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 49 कैंसिल, इसमें से आपने माइनस करनी है ये 56 वैल्यू और इसको आप कैलकुलेट करेंगे देन यू आर गोइंग टू गेट 7 2 14, 7 2 14, 154 माइनस 56। तो आपके पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो पूरे ध्यान से आपने क्वेश्चन को करना है कि आपने कौन से एरिया में से क्या माइनस करना है, वो आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा।
सेमी सर्कल में से सेगमेंट माइनस करना है। सेमी सर्कल के लिए मेरे पास रेडियस होनी चाहिए, नहीं है, इसलिए मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है इस ट्रायंगल में। यहाँ से मेरे पास रेडियस की वैल्यू आई है, तो उससे मैंने निकाला एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू 154 आई। ठीक है, उसके साथ मुझे सेगमेंट माइनस करना था। सेगमेंट के लिए मुझे सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस करना पड़ता है, बट यहाँ पर जो मेरा सेक्टर है वो क्वाड्रेंट है, तो मुझे माइनस करना है क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल माइनस। ठीक है, क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा भी लगा सकते हो, थीटा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सो ये सारी वैल्यूज पुट की, आपके पास ओनली 56 इस सेगमेंट का एरिया आया। आपने सेमी सर्कल में से सेगमेंट माइनस किया तो शेडेड पार्ट का आया, दैट इज 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। In your 16th question, we are saying that we have two quadrants. Let me read the question. Calculate the area of the designed region in the figure common between two quadrants of the circle of radius 8 centimeter each. आपके पास दो quadrants हैं। quadrant कैसे बनते हैं? 90 डिग्री एंगल, और ये हो गया आपका quadrant। ठीक है, इस quadrant की रेडियस भी आपके पास 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर। एक और क्वाड्रेंट बना है इसके ऑपोजिट साइड, उसकी रेडियस भी आपकी 8 सेंटीमीटर है। तो ये बिल्कुल आपका जो फिगर बन जाएगी वो एक स्क्वायर बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये भी 8 है, ये भी 8 है, क्वाड्रेंट है तो एंगल्स 90 डिग्री हो गए। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड द एंगल्स आर 90 डिग्री, तो ये हमारी फिगर बन गई स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। ठीक है, अब मैं इसका एरिया कैसे निकाल रही हूँ, देखो क्वाड्रेंट्स थे मेरे पास, मैंने दो क्वाड्रेंट्स को प्लस किया है। ठीक है, अगर मैंने ये दो क्वाड्रेंट्स को प्लस कर दिया, आप एक इमेजिन करो कि आपने एक पेपर लिया, उसमें एक क्वाड्रेंट काटा, दूसरा क्वाड्रेंट एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख दिए। ठीक है, और उसको आपने दोनों के एरिया को प्लस कर दिया। अब जब आप प्लस कर रहे थे तो उसमें कौन सा एरिया था जो आपका पेपर के ऊपर, पेपर कहाँ पर आया, कौन सा एरिया है जो 2 बार आ गया प्लस करने में? तो आप देखेंगे कि ये वाला जो एरिया है ना, ये हमारे पास 2 बार आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये इस क्वाड्रेंट में भी आ रहा है, आपने पेपर कट किया है इस शेप का, उसके ऊपर आपने एक और पेपर रख दिया इस शेप का, दोनों को आपने मिक्स किया ताकि उससे एक स्क्वायर बन जाए। ठीक है, उसको करने के केस में आपका ये वाला जो पार्ट था ना, ये 2 बार आ गया, राइट, और मुझे इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। राइट, अगर मैं इस वाले ओवरलैपिंग वाले पार्ट में से एक स्क्वायर खत्म कर देती हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा? मैंने दो पार्ट्स लिए, ठीक है, दो पेपर्स को मर्ज कर दिया, उसके बाद मैंने उसमें से ये स्क्वायर का एरिया माइनस कर दिया। मेरे पास ये वाला जो एरिया था ना, ये 2 बार आ रहा था, अगर मैंने पूरा स्क्वायर माइनस कर दिया तो एक बार तो ये वाला बच जाएगा ना। ठीक है, और मुझे चाहिए भी यही, मुझे चाहिए भी इसी का एरिया, सो आई विल गेट द एरिया ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, तो मैं एरिया ऑफ शेडेड पार्ट के लिए क्या कर रही हूँ, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट is equal to area of two quadrants minus area of square। स्क्वायर का मतलब सारी चीज एक बार माइनस हो गई। ठीक है, अब एक बार माइनस होगी, ये तो ये वाला पार्ट तो पहले ही एक बार आ रहा था, माइनस हो गया, ये वाला पार्ट एक बार आ रहा था, हट गया, ये वाला पार्ट 2 बार आ रहा था, 2 बार में से हमने माइनस एक बार कर दिया, बाकी बच गया एक बार, मतलब शेडेड वाला पार्ट मुझे मिल गया। सो two quadrants means 2 times, area of quadrant means 1/4 pi, what is the radius, 1/4 pi r square, radius is 8, so 8 square minus area of the square, और स्क्वायर की आपके पास साइड कितनी है, 8 सेंटीमीटर, सो ये हो गया आपके पास 8 स्क्वायर। नाउ दिस इज, ये आपने कैंसिल किया, 1/2 22/7 into 8 into 8 minus 64। ठीक है, इससे आपने इसे हटा दिया, राइट, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, 64 into 11 .
724/7 -64, ठीक है। वैसे आप इसमें से अगर 7 कॉमन ले लेते हो ना, सॉरी 64 अगर आप कॉमन ले लेते हो तो आपका ये क्वेश्चन और भी इजी हो जाता है। ये 64 है, आपने इसमें से 64 ले लिया कॉमन, ठीक है। यहाँ से अगर 64 बाहर आ चुका, आपके पास रह गया 11/7, और यहाँ से 64 बाहर आ चुका, मीन्स आपके पास रह गया 1। नाउ यू हैव 64, और अंदर आपने एलसीएम ले लिया 7, 7 1 ज़ा 7, ठीक है। 11 - 7 इज 4, सो 64 into 4/7, और मल्टीप्लाई कर लीजिए 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मैंने लिया है कॉमन 64, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि आप भी कॉमन लें। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए, उसमें से आप फिर एलसीएम ले लो। एलसीएम लेके आप ये माइनस होके आपके पास आंसर सेम आ जाएगा 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि आप क्या करें, इसको मैं बीच में से, मैं कह रही हूँ कि ये मेरा शेडेड पार्ट 2 पार्ट्स का बना हुआ है, एक तो ये वाला और दूसरा इधर वाला, ठीक है। ये भी मेरा सेगमेंट है, मैं सेगमेंट का एरिया भी निकाल सकती हूँ। सेगमेंट का एरिया जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में से किया है, क्वाड्रेंट में से ट्राइंगल आप माइनस कर दो। मैं कह रही हूँ कि मैंने ये सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैं इस सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो मैं इस क्वाड्रेंट में से इस ट्राइंगल को माइनस कर दूंगी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगाकर, ठीक है। तो मेरे पास इसका एरिया आ जाएगा, और इसको मैं क्या कर दूंगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरे पास पूरा डिजाइन का एरिया आ जाएगा। देन ऑल्सो यू विल गेट योर आंसर टू बी सेम, ठीक है। दोनों ही केसेस में आपको सेम आंसर मिलेगा, राइट। So this was your exercise 12.3, which you have to finish, right? If you still face any problem, then in tomorrow's class, we may discuss the problems, right? Thank you and have a nice day to all of you.